So let us continue our discussion with the active and passive elements. So now let us find the what are active elements. Okay. So an active element supplies energy. This is the definition it is given. See, one more diagram you can see here. Let me take a pen. So what are active elements, students? Active element वो element होते हैं जो energy देते हैं. Either it is a DC source. This is a DC source. Battery is given. This is a battery. This is an active element. Or you are taking energy from the sun. सूरज से रोशनी मिल रही है and then solar panel is converting it into a source of energy. Then from this source you will get current. यहाँ देखो, hydro power plant is supplying water here and this water is going to this piston turbines and then the power is coming out from these towers. Okay, so this is known as a hydropower plant. You all know this. And this power through transformer is coming to your home. At your home you can see there is a supply board like this. But what is the difference between this source, and what is the difference between this source? This source is a DC source and this source is a AC source. Okay, so what is an active element? An active element is such an element which provides you energy, supplies energy to an electrical circuit. Okay, अब एनर्जी सप्लाई कर रहा है तो कोई एनर्जी कंज्यूम भी करेगा. सो those elements which will consume energy are known as passive elements and those elements which supply energy are known as active elements. But passive elements we will see in detail in our next slides. But let me tell you more about the active elements first. See, हम एनर्जी सोर्सेज को इस तरीके के फ्लो चार्ट में डिवाइड कर सकते हैं एनर्जी सोर्स को. ओके, एज आई हैव टोल्ड यू, अ डायरेक्ट सोर्स, दिस इज द डायरेक्ट सोर्स, this is the direct source, DC source, and the other one is the alternating current source. This is the alternating current source. Okay, now direct sources can be divided into two types. What are these? Independent sources and the dependent sources. यही मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि dependent sources study in this course of network analysis is very important. Okay, so VCVS, what is this? There are four type of dependent sources. I have also discussed in your first semester. That is voltage controlled voltage source, voltage controlled current source. अब change हो जाएगा, current controlled voltage source and current controlled current source. If I will tell you the diagrams, you see, compare these diagrams. अगर आप compare करोगे, जब भी this type of symbol is provided, see this type of symbol like this, then it will be known as a AC source. This is AC source. Okay, this is AC source, alternating current source. And whenever there is a plus minus, और प्लस माइनस की जगह पे अगर इस तरीके से बैटरी लगी हुई है like this, then it is known as the DC source. अगर V लिखा है तो it is known as voltage source and अगर I लिखा है तो it is known as current source. Now what are these dependent sources? तो इंडिपेंडेंट सोर्सेज के अलावा डिपेंडेंट सोर्सेज क्या होते हैं? दिस डिपेंडेंट सोर्सेज जब भी होंगे तो इस तरीके के क्वाड्रिलेटरल में शो किए जाएंगे, इस तरीके के क्वाड्रिलेटरल में. अब एक सोर्स को कैसे पहचाने कि वो कौन सा सोर्स है? तो बाय द नेम. सी, यहाँ पर नाम लिखा है सपोज वो 5V. 5V मतलब एक ये वोल्टेज की वैल्यू है और ये एरो बना हुआ है. तो सबसे पहले यहाँ पर ऊपर देखो, ऊपर मैं एक चीज बना रहा हूँ. सपोज एक ऐसा एक यू आर हैविंग अ सोर्स और इस सोर्स के अंदर अगर मैंने एक एरो बना दिया तो सबसे पहली बात तो ये कि ये एक करंट सोर्स है. तो हम यहाँ लिख लेते हैं दिस इज अ करंट सोर्स. ओके, तो ये करंट सोर्स हो गया. और अगर मैं यहाँ पे एक यहाँ राइट सी इन द राइट बिलो द सिस्टेक लोगो, और अगर मैं यहाँ पर इस टाइप से एक और डायग्राम बना रहा हूँ और इस डायग्राम में आई एम राइटिंग प्लस एंड माइनस, तो ये एक क्या है? ये एक वोल्टेज सोर्स है. तो फ्रॉम दिस एरो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल आइडेंटिफाई दैट विच टाइप ऑफ सोर्स इट इज. तो एरो है तो करंट सोर्स और प्लस माइनस लिखा है तो वोल्टेज सोर्स. अब सेकेंड थिंग व्हाट यू हैव टू सी, अब आपको देखना है वैल्यू. मान लो लिखा है 2V. 2V मतलब ये एक करंट सोर्स है और किसी वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है. ओके, तो दैट मीन्स क्या हो गया? ये वोल्टेज पे डिपेंड करने वाला करंट सोर्स है. तो व्हाट व्हाट विल बी द नेम? वोल्टेज डिपेंडेंट, वोल्टेज पर डिपेंड करने वाला करंट सोर्स. दैट मीन्स ये
जो भी आपका जो क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है उसके अंदर जो सोर्स है दैट विल बी द लास्ट वर्ड। सी हियर इन द लास्ट स्लाइड, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर देखें, इस डायग्राम को देखिए, ए वाले डायग्राम, थर्ड वन, थर्ड फिगर यू सी, इन द थर्ड फिगर व्हाट इट इज रिटर्न, प्लस माइनस। तो प्लस माइनस का मतलब क्या हो गया कि ये एक वोल्टेज सोर्स है, तो जस्ट राइट वोल्टेज सोर्स। ओके, अब इसका नाम लिखा है 10i, मतलब करंट पर डिपेंड कर रहा है, दैट मींस करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। सही है ना। अब लेट अस सी इन दिस डायग्राम, पहले तो एरो देखा अंदर, आफ्टर सीइंग द एरो व्हाट यू कैन से विच टाइप ऑफ सोर्स इट इज अ करंट सोर्स। ओके, और इसकी वैल्यू क्या है, समथिंग आई। तो आई का मतलब क्या हुआ कि ये करंट पर डिपेंड कर रहा है, तो करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। सही है कि नहीं। नाउ सी हियर, एरो बना हुआ है, व्हाट डज इट मीन, एरो बना हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, ये करंट सोर्स हो गया, सी एस करंट सोर्स है। करंट सोर्स तो है तो इट्स ओके, बट इट इज डिपेंडिंग अबाउट वोल्टेज, वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, तो वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। एंड सिमिलरली व्हाट इट इज, एक वोल्टेज सोर्स है और साथ में वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, तो वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई। तो आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो यही मिलेगा आपके एग्जाम में, जो अभी एक छोटा सा एग्जाम होगा आपका, इन दैट एग्जाम यू हैव टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ सोर्स इट इज। तो आई थिंक मैंने आपको यहाँ समझा दिया है अच्छे से कि इफ अ डायग्राम इट इज गिवन देन व्हाट टाइप ऑफ सोर्स इट इज। सो लेट मी टेक an example for you. First of all, okay, so suppose students, एक homework दे रहा हूँ, suppose you just identify this, I have cleared the screen, just identify it, if I am writing plus here and I am writing minus here and I am writing 10 and I am writing I, suppose this is a question and I have asked a question कि which type of source it is। यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन लिख दूँ which type of source it is और ऑप्शन आपको मिल जाए ए बी सी डी और चारों लिखे रहे तो व्हाट इट इज, आप गैस करिएगा और यूट्यूब पर देखने के बाद इसका मुझे कमेंट करके बताना कि क्या है आंसर। ओके, तो ओके, अब व्हाट वी हैव टू डिस्कस टुडे, टुडे वी नीड टू डिस्कस, नाउ लेट अस डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक। अभी मैंने आपको बता दिया अच्छे से। Now, what is a AC source and DC source? Let us compare those sources. What is this AC source and what is this DC source? Let me take a highlighter. तो AC source क्या है? तो ये आपको मैं बता चुका हूँ। AC source is represented by this type of waveform and DC source is represented as plus and minus. इसका physical meaning क्या हुआ? What is the meaning of this? AC source means, see the waveform. The waveform is clearly showing you that it is going to a top value, उसके बाद नीचे आ रहा है, उसके बाद ऊपर आ रहा है। Mathematically this AC source you have studied। और DC source का मतलब, और इसको इसलिए हम लिख सकते हैं A sin omega t, means it is fluctuating like sine wave, तो V equal to A sin omega t। तो जब भी आपको एक सोर्स गिवन है तो उसकी वैल्यू हमेशा साइन ओमेगा टी रहेगी और कॉस ओमेगा टी रहेगी, दैट मीन्स इट इज फ्लक्चुएटिंग। और जब भी डीसी सोर्स है दैट मीन्स इट इज अ कांस्टेंट। अब इसको हमें मैथमेटिकली कैसे समझना चाहिए, अगर कभी ऐसी, if there is a such a situation that if you want to differentiate a AC source, suppose if you want to differentiate a AC source, I am saying differentiate a AC source, then what you will get by differentiating a AC source, you will never get zero, because sine omega t differentiation is cos omega t। And suppose I am saying you differentiate a DC source, this DC source को differentiate करो, so what you will get, you will get zero। All right, this fundas we will use in our upcoming slides। Now let me tell you a picture, what is a sinusoidal waveform। Suppose this AC source, ये जो AC source है, let me change the pen, ये जो AC source है students, suppose I have applied it here in these two terminals, एक ये terminal है, एक ये terminal है। So what is the meaning of this AC source? The meaning is, from A to B in this wire,
ये जो वायर दिख रहा है आपको, फ्रॉम ए टू बी द करंट इज मूविंग फर्स्ट लाइक दिस and then the current is moving like this. And if the frequency in India में frequency कितनी है? इंडिया में frequency है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज इसका मतलब क्या हुआ? एक सेकंड में 50 टाइम्स current is moving like this and coming back from here like this. So this is the meaning of this AC source. Okay. Or what is the meaning of this DC source? Let us see the waveform. It means constantly अगर 5 एम्पियर करंट है तो 5 एम्पियर करंट इज मूविंग फ्रॉम, अगर ये एक डीसी सोर्स है, इट मींस 5 एम्पियर करंट है तो ए टू बी ऑलवेज देयर इज 5 एम्पियर करंट। वो ना कम हो रहा है ना वो ज्यादा हो रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। और एसी में क्या हो रहा है? कभी पहले इस समय जाते समय शुरुआत में 2 था, फिर और बढ़ा, फिर और इंक्रीज हुआ, फिर और इंक्रीज हुआ, फिर एक टॉप वैल्यू पर गया, फिर डिक्रीज 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 डिक्रीज, जीरो भी होता है, फिर वो पलट जाता है। मीन्स यहाँ से यहाँ जब करंट इस वायर में इट इज गोइंग, then it is increasing and then decreasing and then it is rotating its path like this. So this is alternating physical significance. You should study, you should understand these things. So a pure AC waveform is like this and DC waveform is always studied like this. अगर मैं इस वायर को एक यहाँ पे देख सकते हो, if I have applied a resistance, this is a resistance in place of this wire AB, if I am replacing it with resistance, तो एक सर्किट बन जाएगा। And what is this resistance? Resistance is actually a bulb. Okay. Now आप एसी समझ गए हो, डीसी समझ गए हो। एसी मतलब आप समझ गए होगे आपके एक वायर में कंटिन्यूसली करंट इज चेंजिंग इट्स पाथ, ए टू बी, बी टू ए, ए टू बी, बी टू ए, ए टू बी, बी टू ए, एंड एक सेकंड में 50 टाइम्स इट इज डूइंग लाइक दिस। और डीसी में क्या हो रहा है? एक ही डायरेक्शन में पाथ में करंट इट इज फ्लोइंग। अब हमारे सेकंड टॉपिक है व्हाट इज पैसिव एलिमेंट्स। ओके, तो व्हाट आर पैसिव एलिमेंट्स? स्टूडेंट, पैसिव एलिमेंट्स जो होते हैं, ये तो एक्टिव हो गए, एक्टिव आपको मैंने पढ़ा दिए। Passive elements, there are three types of passive elements, students. One is the capacitor, it's look like this. Inductor, inductor मतलब एक कॉइल है, एक ऐसी वायर है जिसको आप बहुत सारे ऐसे ऐसे रोटेशन में टर्न्स में बांध दो, then it will become a coil, and that coil is known as inductor. And the one is the resistor. This is your resistor. So अगर मैं इनको सेपरेटली लिख दूं, रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, तो हर बार हम इनका डायग्राम इसी तरीके से नहीं बनाएंगे। ओके, हम इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आई एम टेलिंग यू हियर, सी, रजिस्टर इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, इंडक्टर इज दिस इंडक्टर, ये जो इंडक्टर है दिस विल बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, एंड दिस कैपेसिटर इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। ये हम अपने जो थ्योरेटिकल जो अभी हम कैलकुलेशंस करेंगे उसमें वी विल यूज दिस टाइप्स ऑफ सिंबल्स, एंड दिस यू आई हैव टोल्ड यू इन योर फर्स्ट सेमेस्टर आल्सो। अब ये जो डायग्राम है ये क्या है? हमारे घर में फैन है, वॉशिंग मशीन है, कूलर है, ओवन है, ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स यू आर यूजिंग, आप यूज कर रहे हैं। ओके, और हमारे घर में कौन सा सप्लाई आ रहा है? वी आर यूजिंग एसी सप्लाई। इन योर पावर सिस्टम सब्जेक्ट जब आप फोर्थ सेमेस्टर में आएंगे और फोर्थ सेम में यू विल स्टडी अ सब्जेक्ट विच इज नोन एज पावर सिस्टम, एंड व्हाट यू विल स्टडी देयर इन दैट सब्जेक्ट, आपको ये पता चलेगा कि अगर किसी वायर में, एनी वायर, इफ देयर इज अ फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट अगर फ्लो हो रहा है, देन ऑटोमेटिकली देयर विल बी अ जनरेशन ऑफ इंडक्टेंस। इट मींस हमारे जो घरों में ये सारे एप्लीकेशंस हैं, ये सारी जो चीजें मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पर, इन सब में कहीं ना कहीं इंडक्टर इज प्रेजेंट, दिस इंडक्टर इज प्रेजेंट। Okay, also this capacitor is present. That's why the study of the passive elements is very, very important for us. Okay, so let me continue. ये कुछ ऐसे switches हैं, you can see ये अलग अलग symbols हैं, मैंने यहाँ पर बस put up कर दिए हैं। There was no need कि मैं इनको put up करूँ because रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर ही है, लेकिन और भी सिंबल होते हैं, वेरिएबल रजिस्टर, एलईडीज, थर्मिस्टर, ओके। ये स्विचेस बस हैं, डायोड्स, ये डायोड हो गया आपका, दिस इज अ डायोड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट मी टेल यू,
इंटरनल फॉर्मूलाज ऑफ द पैसिव एलिमेंट्स, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। ओके, तो व्हाट आर पैसिव एलिमेंट्स? रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इंडक्टर, ये इंडक्टर है और ये हमारा रजिस्टर है और ये है हमारा कैपेसिटर, ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू द फॉर्मूला ऑफ द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाय ए, जिस यू ऑल नो, एंड द यूनिट इज ओम्स। इंडक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू एन स्क्वायर ए बाई एल। अब ये जो कॉइल बनी हुई है ना, इस कॉइल का जो यहाँ का जो फ्रंट क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो होगा ए। ये जो कॉइल की लेंथ है ये हो जाएगी एल, और नंबर ऑफ टर्न्स जितने भी हैं ये हो जाएगा एन स्क्वायर। so you can calculate L, and the unit of L will be known as Henry. That is not ohms, ये ohms resistance है, that is L is Henry. Okay, तो Henry को ohms में convert करना है, we need to convert this Henry into ohms. So this we have to study in our next lectures कि हेनरी को ओम्स में कैसे होगा, बट यू ऑल नो दिस बिकॉज हमने ये फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है, आपको ध्यान अगर आ जाएगा तो। सिमिलरली कैपेसिटेंस की हम बात करें तो दो पैरेलल प्लेट प्लस एंड द माइनस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ डी, एंड इनका इस प्लेट का एरिया है ए, देन इट इज नोन एज एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। नाउ इफ यू कैन सी क्लियरली, रेजिस्टेंस के केस में हम एक रो टर्म ले रहे हैं, इंडक्टेंस के केस में हम म्यू टर्म ले रहे हैं, और कैपेसिटेंस के केस में हम एप्सिलॉन टर्म ले रहे हैं। तो ये तीन कांस्टेंट्स होते हैं, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट, इंडक्टिविटी कांस्टेंट्स एंड द कैपेसिटिव एप्सिलॉन कांस्टेंट, परमिटिविटी कांस्टेंट। ओके, नाउ यू कैन, यहाँ पर आप फॉर्मूलेस आप नोट कर सकते हो, तो एक फॉर्मूला और जनरेट होता है। दिस इज द ओल्ड डिस्कशन विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड स्टूडेंट। अगर मैं अभी तक के अपने जो पहला लेक्चर, इससे पहले जो आपने देखा और अभी का लेक्चर बताऊं आपको, तो क्या पढ़ा हमने? वी हैव स्टडीड एक्टिव एलिमेंट्स। एक्टिव एलिमेंट्स मतलब जो सप्लाई करते हैं आपको एनर्जी। वी हैव स्टडीड पैसिव एलिमेंट्स, जिनका अभी हमने सिर्फ फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हमें क्या करना है? नाउ वी वांट टू कनेक्ट देम, ओम्स लॉ एप्लीकेशन। दिस इज, वी हैव टू द कंटिन्यू द पोर्शन ओम्स लॉ। अगर एक रेजिस्टेंस में, ये रहा रेजिस्टेंस, ये रहा इंडक्टेंस, एंड दिस वन इज द कैपेसिटेंस सी। अगर एक रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस में इफ वी विल कनेक्ट एन एक्टिव एलिमेंट, एक्टिव एलिमेंट कौन कौन होता है आपको बताया मैंने, एक होता है डीसी सोर्स और एक होता है एसी सोर्स। अगर एसी या डीसी जो भी सोर्स इफ वी विल कनेक्ट, तो इसमें करंट जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। इसमें जाएगा करंट कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। इसमें जाएगा कि नहीं करंट? बिल्कुल जाएगा। तो देयर आर एंट्री ऑफ करंट। अगर रजिस्टर में, या ये रहा रजिस्टर, इसमें करंट जाएगा, इंडक्टर में भी करंट जाएगा, और इस कैपेसिटर में देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, हमने एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया है, तो इसकी वजह से इसमें करंट जा रहा है। तो क्या होगा? व्हाट विल बी द बिहेवियर, व्हाट विल बी द ओम्स लॉ, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे रेजिस्टेंस में। तो ये आप जानते हो, V इक्वल टू आई आर, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस, और करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। सिंपल, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। दिस इज द फॉर्मूला बाय हार्टेड, और आपको मालूम है, ये आपने फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्स में भी पढ़ा है। दिस इज अ सिंपल ओम्स लॉ, एंड करंट का फॉर्मूला यहीं से निकाला जा सकता है, एंड दैट इज वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। The both the formulas I have written here also, and I have mentioned it here also. This you have studied. Now the second thing is, जब हम इंडक्टर की बात करते हैं तो फॉर्मूले में अचानक से चेंज आ गया है। Look at here, वोल्टेज डेवलप, जब भी हम इंडक्टर में एक वोल्टेज अप्लाई करेंगे, कोई भी सोर्स अप्लाई करेंगे, दैट मीन्स तो क्या होगा? वोल्टेज ऑफ द इंडक्टर, यानी यहाँ पर जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है, प्लस एंड माइनस, व्हाट इट इज एल। देखो यहाँ क्या हो रहा था? आर इंटू आई, वोल्टेज ऑफ द रेजिस्टेंस इज आर इंटू आई। यहाँ पे क्या हो रहा है? एल इंटू आई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, लेकिन आई का डिफरेंशिएशन एल डी आई बाई डी टी हो जाता है। दिस फॉर्मूला यू हैव डिराइव्ड इन योर फर्स्ट सेमेस्टर, एंड इन टुडेज थर्ड सेमेस्टर। ये आपको याद होना चाहिए, आपको इसका प्रोसेस भी मालूम होना चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में मुझे यूट्यूब पर ये बता सकते हो कि इफ यू डोंट नो, देन आई विल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस डेरिवेशन। इट इज वेरी वेरी सिंपल, बट आई होप कि ये आपको मालूम होना चाहिए कि वोल्टेज ऑफ द इंडक्टर क्या है। ओके, नाउ
अगर वोल्टेज ऑफ द इंडक्टर इज एल डी आई बाई डी टी, देन करंट कैन बी कैलकुलेटेड कैसे, डी टी को यहाँ पे ट्रांसफर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वी डी टी, एल डिवीजन में चला जाएगा, अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा आई, इंटीग्रेशन में कर डी आई का इंटीग्रेशन आई, और इस साइड मिल जाएगा इंटीग्रेशन वी ऑफ, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आई ऑफ टी इक्वल टू 1/l, देखो एल नीचे चला गया, 1/l इंटीग्रेशन ऑफ वी एल ऑफ टी। मतलब यहाँ पर मैथमेटिक्स फुल्ली आ गया। इंडक्टर में हम जब वोल्टेज सोर्स देंगे तो जो भी करंट जाएगा, अभी मैंने ये बिल्कुल नहीं बताया कि ये करंट एसी है या डीसी है, ये तो आगे की पढ़ाई है। अभी मैंने सिर्फ बताया है कि जो भी करंट इसके अंदर जाने वाला है स्टूडेंट्स, उस करंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तब हमें यहाँ का वोल्टेज मिलेगा, और अगर हम इस वोल्टेज जो मिल गया है इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें करंट मिल जाएगा। अब आप ओके, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ये डायरेक्ट ऐसा सिंपल नहीं है रेजिस्टेंस की तरह, अगर सिंपल होता तो ये वाला पोर्शन तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लेते, बट इट इज नॉट सिंपल, दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग इन थर्ड सेमेस्टर नेटवर्क एनालिसिस। और अब थर्ड पोर्शन इज जस्ट रिवर्स, जैसे वोल्टेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो डिफरेंशिएशन ऑफ करंट कर रहे हैं, यहाँ वोल्टेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ करंट कर रहे हैं। ये एक ट्रिक है, ये फॉर्मूले हमने आपको डिराइव भी कराए हैं, तो यू हैव टू स्टडी हियर दैट वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर इज नथिंग बट 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। बिल्कुल रिवर्स हो जाता है, बिल्कुल रिवर्स। यहाँ देखिए आप, एल डी वी वोल्टेज ऑफ द इंडक्टर इज एल डी आई बाई डी टी, एल ऊपर है न्यूमरेटर में और डी आई बाई डी टी हो रहा है। यहाँ पे वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर निकाल रहे हो तो क्या हो गया, अब की बार यहाँ पर एल ऊपर है तो सी नीचे कर दो, 1/c इंटीग्रेशन आई डी टी। अब यहाँ पर आई ऑफ सी क्या है, यहाँ पर आई ऑफ सी याद रख लो, 1/l है तो यहाँ पे सी ऊपर है, यहाँ पे एल नीचे है, इंटीग्रेशन ऑफ वी है तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ वी, दैट्स इट। इंडक्टर एंड कैपेसिटर्स आर बोथ रिवर्स टू ईच अदर in their performance. So these three formulas you have to by heart it, और ये आपको बहुत जरूरी से पढ़ना है। ओके, नाउ let me continue connectivity of active to passive elements. What is the connectivity now? कनेक्टिविटी देख सकते हो, यहाँ पर डायरेक्टली मैंने कनेक्ट किया है। अगर यहाँ देखो तो एक मैंने कनेक्ट करके दिखा है, दिस इज व्हाट, दिस इज अ डीसी सोर्स, एक बल्ब है, बल्ब मतलब एक रजिस्टर को मैंने सीरीज में एक मोटर से जोड़ रखा है। दिस मोटर इज अ टाइप ऑफ इंडक्टर, ओके, दिस मोटर इज एन इंडक्टर। तो यू कैन सी दैट अगर आप एक सेल से एक बल्ब जला रहे हो, एक छोटी सी मोटर चला रहे हो, तो डीसी सोर्स की एनर्जी डीसी सोर्स से कनेक्ट जा रहा है काय में, एक रेजिस्टेंस में और इंडक्टेंस में। तो हम इसको सर्किट के फॉर्म में बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, आपको कैसे पढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस आर कनेक्टेड विद अ डीसी सोर्स। और इसकी आप ड्राइंग यहाँ देख सकते हो, इस डायग्राम में क्या दिख रहा है, एक पैसिव एलिमेंट है जो कि एक बल्ब है, बल्ब है दैट मींस इट इज अ रेजिस्टेंस ओनली, एंड दिस रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू दिस डीसी सोर्स। तो डीसी सोर्स हो गया, अगर ये मैं अपने घर के स्विच बोर्ड से कनेक्ट कर दूं देन इट विल बिकम अ AC source. Okay, now what you can see in this diagram, एक पैसिव एलिमेंट है जो कि एक डीसी सोर्स है, दैट इज कनेक्टेड विद टू पैसिव एलिमेंट, टू बल्ब्स, टू बल्ब मतलब, और ये एक ही पॉइंट पर ये दोनों वायर कनेक्टेड है, दैट मींस ये कौन सा टाइप का कनेक्शन हो गया, पैरेलल कनेक्शन हो गया। तो व्हाई आई हैव पुट इट ऑल दिस टाइप ऑफ डायग्राम टू मेक यू अ क्लियर विजन कि व्हाट इज इंडक्टर, व्हाट इज कैपेसिटर एंड हाउ दे विल बी कनेक्टेड। ओके, नाउ लेट मी रब इट फर्स्ट बिकॉज अब मुझे और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। लेट मी रब इट, ओके, ओके, सो ओके, नाउ लेट मी टेक अ पेन अगेन, आई कैन टेक अ पेन। तो सी, तो यहाँ दो टाइप की एनालिसिस हो सकती हैं, लेट मी अंडरस्टैंड टेक यू। एक होगी डीसी सर्किट एनालिसिस और एक होगी एसी सर्किट एनालिसिस। क्या मतलब हुआ डीसी सर्किट का, डीसी का मतलब हो गया ये सोर्स, आप देख के ही पहचान सकते हो ना, प्लस माइनस डीसी। और अगर ये इस तरीके से बना हुआ है, या देखो यहाँ पे ये वेव फॉर्म टाइप के शेप में बना हुआ है और वोल्टेज लिखा है, तो ये ऊपर वाला हो गया हमारा डीसी सोर्स और ये नीचे वाला हो गया हमारा एसी सोर्स। ओके, इज इट क्लियर? नाउ व्हाट आर पैसिव एलिमेंट्स, अब मैं इस टाइप का डायग्राम बना रहा हूँ, देखो यहाँ पर
रेजिस्टेंस है और यहाँ डायग्राम में देखो इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस है। दिस टाइप ऑफ डायग्राम यू हैव ऑलरेडी सीन दिस टाइप ऑफ डायग्राम, बट नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ डायग्राम। अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस के केस में ओम्स लॉ कैसे लगेगा, तो आप बोलोगे V इक्वल टू क्या बोलोगे, सही बताओ, आई इंटू आर। अगर मैं बोलूंगा इंडक्टर के केस में व्हाट इज द वोल्टेज इक्वेशन, तो आपको याद होना चाहिए V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। जो भी करंट इसके अंदर जाएगा सर, द डिफरेंशिएशन ऑफ दैट करंट इनटू एल, जो भी एल की वैल्यू होगी। कैपेसिटर के साथ वोल्टेज जो है 1/c इंटीग्रेशन आई डी टी। ओके, दिस इज टू अंडरस्टैंड यू। लेकिन अभी एनालिसिस के लिए लेट अस टेक सिंगल सिंगल। तो पहले तो हम एसी सोर्स के बारे में बात बता चुके हैं और डीसी के बारे में बता चुका हूँ। एसी मतलब हो गया फ्लक्चुएटिंग, ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट होगा, लेकिन मैथमेटिकली हम उसे साइनसॉइडल वेव फॉर्म बनाते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली क्या है, एक वायर में करंट इज गोइंग लाइक दिस, देन करंट इज कमिंग बैक लाइक दिस। और डीसी सोर्स क्या है, एक वायर में एक ही डायरेक्शन बस पकड़ा हुआ है, जो भी डायरेक्शन में जा रहा है बस वैसे ही जा रहा है, नो चेंज। सो सी हियर, एक डीसी सोर्स इफ आई एम गिविंग टू अ रेजिस्टेंस, तो उसमें करंट फ्लो होगा। एक डीसी सोर्स आई एम गिविंग टू अ इंडक्टेंस, तो उसमें भी करंट फ्लो होगा। एक डीसी सोर्स आई एम गिविंग टू अ कैपेसिटेंस, तो उसमें भी करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो क्या होगा ये फॉर्मूला, आई करंट जो आएगा, करंट करंट ये हमें फार्मूले हमें मालूम है। इसी तरह हमें दूसरी कनेक्टिविटी क्या करनी है, आप एसी सोर्स रेजिस्टेंस को, एसी सोर्स इंडक्टेंस, एसी सोर्स कैपेसिटेंस को देंगे, तो हमें क्या करंट में चेंज आएगा, क्या क्या होगा। अब हमें फॉर्मूले ही अप्लाई करना है। ओके, और फॉर्मूले यू ऑल नो कि क्या है फॉर्मूले। अब कनेक्टिविटी जो आगे जाने वाली है इन आवर सेकेंड लेक्चर, उसके लिए हम अब इन फॉर्मूलेस का यूज करेंगे। लेट मी टेक यू बैक, मैं बैक जा रहा हूँ एक बार। सी दिस स्लाइड, यू नो, इस स्लाइड में मैंने क्या पढ़ाया आपको, फॉर्मूलेस। ये फॉर्मूलेस यू कैन सी, वोल्टेज करंट, वोल्टेज करंट, वोल्टेज करंट, रिमेंबर ऑल दीज फॉर्मूलेस। यहाँ से आपको इस स्लाइड से यू विल गेट सम क्वेश्चंस। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। यू कैन गेट द ओम्स लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। अब इसमें ये जो मैंने लास्ट बार बताया था, क्या बताया था कि अगर ये करंट जो घुस रहा है रेजिस्टेंस में एक वोल्टेज डेवलप करेगा, तो ये करंट कौन सा है, एसी है कि डीसी है। दिस इन द सेकंड स्लाइड ओनली हियर आई हैव टोल्ड यू कि अब यहाँ क्लियरली पिक्चर देख लो। अब यहाँ पर अगर ऐसा डायग्राम बना है तो तुम्हें आइडेंटिफाई, यू हैव टू आइडेंटिफाई, अच्छा डीसी करंट इज गोइंग, ओके डीसी करंट इज गोइंग, ओके डीसी करंट इज गोइंग, इन तीन केसेस में डीसी करंट। और अगर इस तरीके का डायग्राम है तो एसी करंट। तो फॉर्मूले तुम्हें मालूम है, यहाँ V इक्वल टू आई आर, यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, V इक्वल टू, VC का क्या है, 1/c इंटीग्रेशन आई डी टी, करंट का इंटीग्रेशन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वोल्टेज का फॉर्मूला, इस वोल्टेज का L, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस करंट। अब यहाँ एक अंदाजा लगा सकते हो कि जब ये डीसी सोर्स है भाई, तो करंट भी डीसी होगा। करंट डीसी का मतलब क्या होगा, कांस्टेंट। तो जब यहाँ पर आप वोल्टेज कैलकुलेट करोगे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब यहाँ पर जो वोल्टेज वेव फॉर्म आनी है क्या है, वो जीरो आने वाली है। समझ में आ रहा है आपका। और यहाँ पर वोल्टेज वेव फॉर्म क्या आने वाली है, इस जगह पर इंटीग्रेशन ऑफ करंट, जीरो नहीं आने वाली। तो लेकिन जब हम डाउन जाएंगे, एसी सोर्स की बात करेंगे यहाँ पर, तो एसी सोर्स में चाहे करंट कोई भी हो, ये वाले करंट फ्लक्चुएटिंग करंट्स हैं, तो ये कभी ना जीरो होंगे, बिकॉज डिफरेंशिएशन ऑफ करंट इज नॉट जीरो, डिफरेंशिएशन ऑफ वोल्टेज इज नॉट जीरो, क्योंकि वो कांस्टेंट नहीं है। दिस इज एसी सोर्स, दिस इज एन एसी सोर्स। ओके, so this you have to study in our next class, next lecture. Today's assignment is what, अब इस assignment की वैल्यू समझ लीजिए आप लोग। टेस्ट विल बी टेकन ऑन गूगल क्लासरूम, ऑब्जेक्टिव टाइप, नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 10, और सिलेबस विल बी दोज टॉपिक विच यू हैव बीन टॉट इन 3 वीडियोस। अभी मेरा ये पहला दूसरा वीडियोस है, ये पहला दूसरा वीडियो है। अभी आई विल बी प्रोवाइडिंग 2 more वीडियोस, और इन पूरे कंटेंट में से आई विल बी प्रिपेयरिंग, गिविंग यू 10 क्वेश्चंस एंड यू हैव टू आंसर देम। ओके, सो लिसन केयरफुली, और इसी के अंदर यू हैव टू आइडेंटिफाई, मैं बताऊंगा आपको कि मैं कौन कौन से क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मैं आपको वोल्टेज इक्वेशन पूछ सकता हूँ, आइडेंटिफाई करने बोल सकता हूँ कि कौन सा सोर्स है कौन सा नहीं, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है टू मेक यू ए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। ओके, और डेट ऑफ टेस्ट आई विल बी प्रोवाइडिंग इन दी व्हाट्सएप ग्रुप। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक यू। इन द नेक्स्ट लेक्चर कनेक्टिविटी को आगे कंटिन्यू करना है हमको, और मैं बता भी देता हूँ कि इन द सेकेंड लेक्चर जब मैं स्टार्ट करूंगा, तो
सिलेबस डिस्कशन करूंगा और यहाँ से मैं आपका कंटिन्यूएशन करूंगा हाउ दीज टू एलिमेंट्स विल बी कनेक्टेड और कैसे होगा वोल्टेज एंड करंट इक्वेशन। एसी सर्किट एनालिसिस अलग चलेगा, डीसी सर्किट एनालिसिस अलग।